Yeah, hello everyone. So yeah, welcome to all of you guys in the live session that is matrix and determinants part 3. So कौन कौन आ गया है क्लास में? Yeah, hello Nishant, hi Shishant. Hello so many Insta all users. Sohail Khan. Okay. You are not late dear. Hi Kishan, hello Golu. Hi Zeba, hello Zaid. Hi Roshan. Hello Suleka, hi Janvi. Good evening everyone. Hi Abhishek Mishra, Jai Shri Ram, Movies SD everyone. So guys, I hope कि all of you are doing well and जैसा कि मैंने बताया था कि आज के दिन से मैं फिर से वापस आ जाऊंगा. I was not in at this place for 3 days. So you guys have started matrices and determinants, right? You guys have started matrices and determinants and आज हमारे पास matrices and determinants का part 3 है. Okay, we'll be doing the part 3 of the matrices and determinants. Yeah. So everyone, hi Rishu, hello Sagar, everyone. Yeah, hi Mehreen. Oh, thank you Abhishek. Rudraksh, A mg tan theta upon m. What is this dear? अगर क्वेश्चन है तो इसको पूछो अलग से ऐप पर. mg tan theta physics seems to be physics. क्या बताना है प्रियम? ओके सो गाइज, आप सब ने बेसिक थोड़ा सा स्टार्ट किया था मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज किया था, राइट? आज हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डू सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, राइट? Totally we will be doing today the properties of matrices, and properties of matrices में it's very important, right? So okay, hi oh yeah, hello Zeru and Anurag Verma, Shivam. Today my first day. Welcome dear. Hi Rahul. Hello Anurag. Okay. So guys, अपना start करते हैं discussion, right? Discussion start करते हैं. That is the matrices and determinants part 3. Okay. Hi Aditya. Hello Anurag. Jeru, Sunny, everyone. I hope कि we should start now, right? So हमारे पास ये है matrices and determinants. जैसा कि आप सबको पता है, I was discussing this in the previous class. So वहीं से शुरू करते हैं, right Sunny? सो देखो आप सबके लिए जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि दैट इज वी हैव अ ग्रुप, राइट? दैट इज द टेलीग्राम ग्रुप. इस टेलीग्राम का यूज करेंगे. हाय दीपक, वेलकम, राइट? ये लिंक आपके पास गिवन है. सो वी आर हैविंग दिस क्वेश्चन नाउ, राइट? सी एवरीवन, क्वेश्चन गिवन है. इफ क्वेश्चन के पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें बेसिक प्रॉपर्टीज बताता हूं, राइट? Suppose I am saying this one. If I am having suppose AB inverse, right? So what is this? Live pictures not coming. Chotu, refresh karo. How I am fine dear. So देखो AB inverse will be what? It is B inverse A inverse. I hope it's clear to all of you. AB inverse is B inverse A inverse, right? एंड इसी तरह से एक और चीज देखा था कि एडजॉइंट ए, राइट? दिस इज द एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए बी, राइट? व्हाट इज दिस? टेल मी व्हाट इज दिस? इट इज एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ए, राइट? सो अब देखो, अगर मैं कहूं एडजॉइंट ए बी इज एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, ये गिवन है हमें. एंड साथ ही साथ एक और प्रॉपर्टीज देखा हुआ है, ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट? 1 बाई डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए. क्लियर? दिस इज इनवर्स. दिस इज मतलब इनवर्स हम तब निकाल सकते हैं जब डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो, राइट? मतलब अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो होगा तो द मैट्रिक्स इज not invertible, right? The matrix is invertible only and only when determinant A is not zero. Clear है? Guys focus करो क्योंकि मैंने बताया. Hi पंकज, hi everyone.
राइट, शीरतम रोल, राइट। सो देखो ये बेसिक से कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके बेस पे हम क्वेश्चंस को करेंगे, राइट। और एक चीज और बता दूं तुम्हें, जैसे कि मान लो सपोज मैं कहता हूं डिटर्मिनेंट ए बी, राइट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी व्हाट, दिस इज डिटर्मिनेंट ए इनटू डिटर्मिनेंट बी, राइट, राइट, बशर्ते कि ए बी शुड बी डिफाइंड। ओके एवरीवन प्लीज फोकस टू द क्वेश्चन। गाइस थोड़ा सा रिप्लाई भी करो साथ में, और मुझे ये बताओ कि अगर मैं कहूं डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? So it will become determinant a to the power n. Everyone please focus to the class. Guys क्लास पे डिस्कशन करो और बात की चीजें बाद में। So ये तुम्हारे पास determinant a to the power n is equal to determinant a to the power. Hi मुस्कान, how are you? Very good निरंजन। So guys देखो कुछ लोग बातें कर रहे हैं और कुछ लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं, राइट। So आपको उनमें से बनना है कि आप क्वेश्चंस करो ना, आप क्वेश्चन को फोकस करो। सो मेरे पास सपोज इसी तरह से मैं एक चीज ये कहता हूं कि यहां पे जो भी पावर है वो यहां पे आ जाती है, तो अगर मैं कहूं के ए, राइट, और मेरे पास गिवन है कि जो मैट्रिक्स ए है दैट मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर एन, राइट, ऑर्डर एन एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, सो इट बिकम्स व्हाट, के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज? मैंने बताया हुआ है कि हम प्रूफ नहीं करेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज के हेल्प से क्वेश्चंस करेंगे, राइट, ये चीज पता है हमें, ठीक है। वेरी गुड निरंजन। अब देखो एक चीज और आती है, मैं कहूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज डिटर्मिनेंट ए पावर -1 एंड दैट इज 1 बाई डिटर्मिनेंट ए, राइट, पता है सबको? नमस्ते अबू अरकान, नमस्ते एवरीवन, अनुराग या एमपी वाला, हाँ अब यहाँ पे करते हैं, राइट, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए। वेरी गुड, बहुत सारी चीजें आपको पता है, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना है और उसी की हेल्प से हम क्वेश्चंस करेंगे, राइट। ये चीजें पता हो गई, ये पता हो गई, ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर -1 1 बाई डिटर्मिनेंट ए। अब सोचो मैं अगली चीज तुमसे बोलूं कि देयर आर सम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, राइट, सम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अगर ये क्लियर हो गया तो मैं उस पर डिस्कस करता हूं। देखो हमें पता है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स व्हेन इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू सेम, राइट। हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है? जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। आई होप एवरीवन इज क्लियर। हाय हिमांशु, गुड इवनिंग गाइस, वी आर जस्ट रिवाइजिंग। हेलो सर, मेरे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रियंका क्या है क्वेश्चन तुम्हारा? प्रियंका क्वेश्चन क्या है? प्लीज फोकस, डिस्टर्ब मत करो डियर। इफ ऑर्डर इज नहीं निरंजन, अभी देखो, अभी हम मैट्रिक्स वो हम डिटर्मिनेंट की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। आई एम सेइंग कि इफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इज -a, राइट, और अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। क्लियर? अब देखो दूसरी बात क्या कहूंगा मैं, वी हैव अ डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, एवरीथिंग, बट 4 इंपॉर्टेंट तरीके के मैट्रिक्स होते हैं और वो चारों है तुम्हारे पास। पहला होता है आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, राइट। क्या होता है? कौन बताएगा क्या होता है आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स? आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स क्या होता है, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? हाय सर, आई एम स्वस्तिका फ्रॉम आदिलाबाद, हाउ टू लर्न द आंसर्स ऑफ फिजिकल। अच्छा यू आर स्वातिका एक्चुअली यहाँ फिजिक्स कर रहे हैं, सो जब फिजिकल केमिस्ट्री या उन सब चीज़ों में आएंगे तो आप उन टीचर से डिस्कशन कर लेना, राइट, क्योंकि अभी अगर उस पर डिस्कशन करेंगे तो फोकस तो हम अपने इंपॉर्टेंट जो हम लेके आए हैं क्वेश्चंस उसको नहीं कर पाएंगे, राइट। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, देखते हैं कितने लोग निरंजन को सपोर्ट करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स और होता है इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, राइट, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स होता है हमारे पास, राइट। एक होता है हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये 4 तरह के मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और एक होता है हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, सो देखो 4 तरह की मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई बोल रहे हैं, इफ एनीबॉडी अनुराग प्लीज फोकस यार यहाँ पे। देखो अब मैं कहूं अगर कि आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है तो मेनी पीपल आर सेइंग ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, दैट्स रॉन्ग। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इफ वी आर एबल टू गेट इट देन वी कैन से इट इज अ आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, राइट। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होना चाहिए तब आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स कहोगे, ऐसे नहीं,
राइट। सेकेंड चीज जो होता है इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स में, हाय प्रणाम प्रणाम डियर, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स में, इसीलिए मैंने कहा ना कि इंपॉर्टेंट चीज है और मिस कर जाते हो, राइट, इंपॉर्टेंट सा चीज है और मिस कर जाते हो। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई होगा तो तुम्हारे पास इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स होगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज व्हाट, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल, ये बराबर होना चाहिए, राइट, एंड दैट शुड बी इक्वल टू आई। क्लियर, बोलो। नेक्स्ट आता है निलपोटेंट। कौन बताएगा मुझे निलपोटेंट मैट्रिक्स? हाय प्रियंशु एवरीवन, बताओ जल्दी से कौन बताएगा मुझे निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? उसको बताओ जल्दी से, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? प्रियंका, निरंजन, हिमांशु, माधुरी, अनुराग एंड नवीन, अनुराग, so many people, right, like Priyanka, InstaSol user, everyone. A square is equal to O, पक्का? देखो गलत है, a square is equal to 1 है, मैं कहूंगा a to the power k, right, is equal to O where, right, अब देखो एक पावर k is equal to O, हाय हेलो हेलो पवनी, तो डिटर्मिनेंट है तो ठीक है हिमांशु, बट देखो देखो a to the power k is equal to 0, मैं कहूंगा where if k is the least, guys please focus करो, least positive integer, then it is called nilpotency of the matrix, nilpotency of matrix। क्लियर है? देन हम कहेंगे nilpotency of the matrix। अब ध्यान से सुनो, इसमें डिफरेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है। अब गाइस सोचो कि अगर कहीं पे तुम्हें a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, चलो मैं कहता हूं कहीं पे तुम्हें a मिल गया, ठीक है, तुमने a स्क्वायर किया तो a स्क्वायर भी जो था वो नॉन जीरो था, नॉन जीरो था। मैंने कहा जैसे ही मैंने a क्यूब निकाला तो a क्यूब मुझे 0 मिल गया। निरंजन कोई नहीं, फोकस करो, देखो मैंने कहा a क्यूब हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया, राइट। अब जब मुझे a क्यूब 0 मिल गया, जब मुझे a क्यूब 0 मिल गया तो आगे मैं अगर a टू द पावर 4 निकालता हूं तो a टू द पावर 4 क्या आएगा, a टू द पावर 3 इंटू a, वो भी तुम्हें 0 मिलेगा, a टू द पावर 5 भी 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, वी विल बी गेटिंग a टू द पावर k इज इक्वल टू 0 फॉर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, है कि नहीं? एक बार 0 मिल गया तो उससे हायर पावर तो सारे 0 होंगे, और जब सारे 0 होंगे तो सबको थोड़ी ना निलपोटेंसी बोलेंगे। वी विल शिफ्ट निलपोटेंसी एज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज यहां पे 3 विल बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, 3 विल बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर और उसको बोलेंगे, राइट। हाउ, बट हाउ इज दिस पॉसिबल? पवनी, डेफिनेटली इट इज पॉसिबल, राइट, ऐसा होता है। तुम निलपोटेंसी का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, निलपोटेंसी चेक कर लो सिंपल की निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यू विल डेफिनेटली गेट सम एग्जांपल्स, राइट, ठीक है। तो कभी कभी निलपोटेंसी 2 भी हो सकता है, निलपोटेंसी 3 भी हो सकता है, बट एक बार 0 अगर मिल जाएगा तुम्हें तो उससे आगे हायर सारे पावर 0 होंगे। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जिन्हें कि क्वेश्चन नहीं ले सकते थे, बहुत इंपॉर्टेंट था डिस्कस करना, इसलिए मैंने कहा क्योंकि यहां से क्वेश्चन जब आएगा ना तो बहुत ही सिंपल आएगा और मैक्सिमम लोग करके आएंगे। थैंक यू डेमियन गेमिंग। बबीता रविंद्र, हाँ बताओ जल्दी। बबीता, जानते हो कि टाइम कम होता है तो जल्दी से क्वेश्चन पूछा करो, राइट। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? ओके अनुराग प्लीज फोकस डियर। सो आई गाइस टेल मी, इज इट क्लियर ना? क्लियर है या आगे चलूं? आगे चलूं गाइस, यस और नो? आगे चला जाए? ठीक है ना, वेरी गुड डेमन। सो ये बेसिक सी चीजें थी, राइट। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी आप सबको पता है कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड वन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट, गुड। सो इन सब चीजों को बात को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि मैं एक चीज और कहूँ, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, लाइक मैं कहूँ अगर a इज इक्वल टू तुम्हारे पास 1 0 0 0 2 0 0 0 माइनस 1, तो ये क्या है? दिस इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 माइनस 1, राइट। मतलब अगर तुम्हारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स हो लाइक d1 d2 एंड dn, राइट, तो इस डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, राइट,
इसका पावर n अगर मैं करूंगा तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ऐसा सोचो, मैं कहूंगा a टू द पावर n क्या होगा, तो दैट विल बी d1 टू द पावर n, d2 टू द पावर n एंड सो ऑन, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ जो कि तुम्हें क्वेश्चन में हेल्प करेंगी, इसलिए समझ के रखना है इसको, राइट। पावर n यहाँ पे n ले लेते हो, तो चलो यहाँ पे पावर p ले लो, तो ये p मिल जाएगा, dn टू द पावर p, ठीक है। ठीक है, ओके। क्लास 10 कब स्टार्ट होगा सर? इंस्टासॉल्व आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा डियर। अभी तो जेईई मेंस का चल रहा है, आपको डेफिनेटली बता देंगे, जस्ट फोकस करो, एक दो दिन के अंदर बता देंगे, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, राइट। ये बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस करनी थी, उसे कर लिया, अब चलते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, मैं इसके लिए दूंगा तुम्हें 2 मिनट और देखते हैं 2 मिनट में किसका सही होता है। ये है क्वेश्चन तुम्हारे पास। अगर क्वेश्चन, सर वंस अगेन रिपीट, मुस्कान हम तो वापस आ गए। वंस अगेन रिपीट तो मतलब क्या था उसमें, पीछे में हमने डिस्कशन किया था प्रॉपर्टीज को पढ़ लो। क्या बताना है, पिछले वाली कुछ प्रॉपर्टीज बतानी है। देखो पिछले क्या लिखा था मैंने अभी, ये डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सारे जीरो होते हैं। तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लाइक 1 2 -1। तो इसका अगर पावर लोगे तो सबका पावर हो जाता है। अगर इसका मैं कहूं कि इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, राइट। उसके बाद बस यही चीज मैं कह रहा था। सपोज मैं अगर कहूं कि व्हाट इज a क्यूब, तो a क्यूब को बड़े आसानी से तुम लिख सकते हो यहाँ पे कि 1 क्यूब 0 0 0 2 क्यूब 0 0 0 -1 क्यूब, राइट। सो ये जस्ट बड़े आसानी से ये लिख सकते हो। सर एक बार स्लाइड दिखाओ जहां पे आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स लिखा था। हिमांशु उसको डिलीट कर दिया डियर, तो आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, राइट। उसको डिलीट कर दिया है। आइडेम्पोर्टेंट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू a। चलो आगे चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस हियर। तो देखो क्वेश्चन बड़ा आसान सा है और देखते हैं कौन कर लेता है। इफ एडजॉइंट b इज इक्वल टू a, डिटर्मिनेंट p, डिटर्मिनेंट q इज इक्वल टू 1 एंड देन एडजॉइंट ऑफ q इनवर्स b p इनवर्स इज व्हाट? एडजॉइंट ऑफ q इनवर्स b p इनवर्स इज व्हाट? कौन बताएगा? मैं देता हूं तुम्हें 2 मिनट, राइट। और देखता हूं कौन बनता है क्वेश्चन पति। ओके सो जल्दी से करो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। संगीता जजम, समझ में नहीं आ रहा क्या? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टी के लिए तो मैंने याद कराया है, मैंने समझाया तो है नहीं डियर, तो आप जस्ट उसको याद कर लो और समझने के लिए कहीं से थोड़ा सा रेफर कर लो, राइट। क्योंकि उसकी डिस्कशन में जाएंगे तो अपना हम मेन मुद्दा भूल जाएंगे ना। ओके, हाय राहुल, वेलकम। हेलो अमीर। सो देखो ये है, किसी का आंसर आया तो बताओ जल्दी से। सर व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? जगदीश, मैं मैथ्स एक्सपर्ट हूँ, राइट। सो न्यूक्लियोफाइल इज रिलेटेड समथिंग टू द न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियस विभोर सर आपको बता देंगे, राइट। चलो इसको करते हैं। सो आप विभोर सर से पूछ लेना इसे। चलो अब देखो ये तुम्हारे पास है, मैं कहूं कि, और दूसरी बात विभोर से पूछो आप अभी इंस्टासॉल्व ऐप पर क्वेश्चन, तुरंत क्वेश्चन फोटो खींचो और अपलोड कर दो, तुरंत मिल जाएगा, राइट। सो ये भी एक सोल्यूशन है। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ दिस वन तो मैंने बताया था, एडजॉइंट ए बी इज एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए, राइट। एडजॉइंट ए बी इज एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए। तो यही दिमाग लगाते हुए रिवर्स में क्या लिखेंगे? मैं लिखूंगा एडजॉइंट पी इनवर्स एडजॉइंट बी एडजॉइंट क्यू इनवर्स, राइट। ये लिख सकता हूं मैं, ये तो लिख ही सकता हूं। कुछ लोगों ने आंसर बता भी दिया, बहुत सही। तो देखो मुझे पास बड़ा सिंपल सा तरीका है यार। देखो एडजॉइंट को एडजस्ट करने के लिए या दिमाग लगाने के लिए कह सकते हो कि मैं सिर्फ ये कहूंगा तुमसे कि एडजॉइंट ए, या ऐसे सोचो कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, है ना। दिस इज, अब मैं कहूं कि अगर ये चीज गिवन है तो यहां से एडजॉइंट ए कितना होगा? एडजॉइंट ए हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स, है कि नहीं। अब यहां से अगर मैं तुमसे बोलूं कि व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ
what is the adjoint of Q inverse, तो it will be determinant of Q inverse into Q inverse का inverse, है कि नहीं? डिटर्मिनेंट ऑफ Q इज 1, तो इसके इनवर्स का भी क्या होता है? रेसिप्रोकल, 1/1 इज 1, मतलब ये आ जाएगा 1 इंटू क्यू इनवर्स का इनवर्स विल बी द सेम मैट्रिक्स मींस Q। इसी तरह से एडजॉइंट ऑफ P इनवर्स जो होगा वो भी तुम्हारा आ जाएगा P, तो मैं कहूंगा दिस इज P, और ये एडजॉइंट B गिवन है तुम्हें A, तो A इंटू दिस इज इक्वल टू Q। आंसर इज थर्ड ऑप्शन। मेरे समझ से किसी को दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन को समझने में, बताओ, है ना? टेंजेंट, गुड, राइट। सो ये हो गया तुम्हारे पास क्वेश्चन। तो अब अगर ये क्लियर है तो मैं अगले क्वेश्चन पे चल देता हूँ जल्दी से, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले एक बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी तुम्हें बताऊंगा, दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टीज। कैसा कि मैंने कहा कि प्रॉपर्टीज की ही क्लास है, तो ध्यान से सोचो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है मैं बताने जा रहा हूं तुम्हें। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है? हमें पता है कि एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, राइट। ऑर्डर इसका n मान लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट a इंटू ए इनवर्स, है कि नहीं? अब देखो पावर n है, तो अगर ये क्या है? दिस इज अ स्केलर, डिटर्मिनेंट a इज अ स्केलर, तो अगर डिटर्मिनेंट a को बाहर निकालेंगे तो मुझे आएगा पावर n के साथ में बाहर आ जाएगा डिटर्मिनेंट a इनवर्स, और जैसे ये आएगा डिटर्मिनेंट a टू द पावर n इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a, तो यहां से सिंपल सा मिल जाएगा डिटर्मिनेंट a की पावर n-1। मैंने प्रूफ सिर्फ इसलिए किया, सर मैं समझ नहीं पाया तो आप रिपीट करेंगे? हाँ राहुल, देखो मैंने कहा कि ये डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए इनवर्स मिला। मुझे पता है डिटर्मिनेंट ऑफ के जो होता है वो के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ए होता है। क्यों? क्योंकि के जो है वो स्केलर होता है, और अगर के स्केलर होता है तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए भी स्केलर है। डिटर्मिनेंट ए स्केलर है तो जब ये बाहर आएगा तो पावर एन के साथ में बाहर आएगा, और डिटर्मिनेंट ए की पावर एन के साथ में बाहर आया, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स 1 बाई डिटर्मिनेंट ए होता है, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1, ये आंसर मिल जाएगा, राइट। इसको सिर्फ मैंने इसलिए किया क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा लगता है समझने में, राइट। और मैंने प्रॉपर्टीज को प्रूफ नहीं कर रहा हूं, बट तुम्हें मैट्रिक्स अलजेब्रा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। इन 2-3 प्रॉपर्टीज से मैं मैट्रिक्स का अलजेब्रा सिखा दूंगा तुम्हें, राइट। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, रिफ्रेश करो, थोड़ा सा रिफ्रेश करो डियर। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी जो आती है, राइट, दूसरी प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, सुनो ध्यान से, राइट। नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहा, रिफ्रेश करो रिफ्रेश करो रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करो, आ जाएगा राहुल एंड ऑल। तो देखो ये तुम्हें एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, अब मैं कहूं अगर ये b है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट b का फॉर्मूला मैंने देख लिया, इट विल बी डिटर्मिनेंट b की पावर n-1, है कि नहीं? है कि नहीं? अब देखो डिटर्मिनेंट b का मतलब क्या होगा? b को मैंने एडजॉइंट a माना हुआ है, एडजॉइंट a। अब मुझे पता है कि ये क्या होता है, इसके फॉर्मूले को लिखूंगा डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 की पावर n-1, तो डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 इंटू n-1 स्क्वायर। मेरे समझ से सबको क्लियर है ये बात, है कि नहीं? अगर ये क्लियर है तो मैंने सिर्फ मैट्रिक्स अलजेब्रा समझाने के लिए इस प्रॉपर्टी को प्रूव किया है, अदरवाइज मैं कोई भी प्रॉपर्टीज प्रूव नहीं कर रहा हूँ क्रैश कोर्स में, राइट। सो आई होप कि ये बेसिक सी चीज आपको समझ में आई कि कैसे हम देखते हैं। अगर इसको मैट्रिक्स अलजेब्रा समझ लिया, तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रा समझ लिया, तो बेसिकली तुम कह सकते हो सबका एडिशन सब्सट्रैक्शन समझ लिया, तो ओके, वेरी गुड मुस्कान। सो अब चीजें आसान होंगी, राइट। ये चीजें मुझे क्लियर हो गई, आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है, आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन पे चलने से पहले देखो दूसरी ये चीज मैंने डिस्कस कर लिया, ये है क्वेश्चन तुम्हारे पास। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, या ये है क्वेश्चन हमारे पास। अगेन कितने मिनट दे दूं? 2 मिनट, 2 मिनट देता हूं क्वेश्चन के लिए, देखते हैं कौन सा धुरंधर है यहां पे। सर आप क्वेश्चन नहीं दिखा रहे, क्वेश्चन ये अब है ना संगीता, अब देखो, इफ A is an idempotent matrix satisfying I minus 0.4A inverse
is equal to I minus alpha A, where I is the unit matrix of the same order as that of A, then the value of 9 alpha is equal to, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, राइट? 2 मिनट का टाइम दिया, हाँ तो करो जल्दी से क्वेश्चन को करो, देखते हैं कौन करता है, देखते हैं कौन करता है। हाई इंस्टासॉल यूजर 33321 अपने ओरिजिनल नेम से आओ भाई। ठीक है, हाय भाविनी वसवा, करो इसको जल्दी से। किसका आंसर आया बताओ, अगर आया तो। चलो मैं करता हूं। ए स्क्वायर इज एन आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, मतलब कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, ठीक है, ये चीज गिवन है। अब गिवन है आई माइनस 0.4 ए इनवर्स इज इक्वल टू आई माइनस अल्फा ए, है कि नहीं? नहीं इंस्टासॉल अभी तो नहीं, अभी तो एमएससी के नहीं हो रहे हैं, आगे फ्यूचर में जरूर होंगे, राइट? तो देखो होगा कि यहाँ पे अभी मैं कहूं i माइनस 0.4a से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा i माइनस 0.4a इनवर्स 4a है इंटू i माइनस अल्फा ए। गाइस टेल में कोई डाउट यहां से, क्या मैं ये लिख सकता हूं? ओके कोई नहीं संगीता एंड एवरीवन, कोई बात नहीं, जस्ट समझो, बताओ ये क्लियर है, बताओ ये चीज क्लियर है क्या? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, है कि नहीं? अगर ये मैं लिख सकता हूं तो सोचो कितना आसान हो गया। अगर मैं कहूं i इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करूं i इंटू आई इज आई स्क्वायर इज आई, है कि नहीं? i माइनस इंटू माइनस अल्फा ए माइनस अल्फा ए माइनस 0.4a, है कि नहीं? 0.4a प्लस 0.4 अल्फा ए स्क्वायर, है कि नहीं? अब दिमाग में हम यूज करेंगे 6 आ रहा है आंसर, चेक करते हैं। देखो अब मैं कहूं कि आई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं 0 इज इक्वल टू 0 नहीं, एक्चुअली इसको ओ पढ़ते हैं, नल मैट्रिक्स, माइनस अल्फा ए माइनस 0.4 ए स्क्वायर तो ए के बराबर है क्योंकि दिस इज द आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, तो मैं कहूंगा 0.4 अल्फा ए, है कि नहीं? ये चीज लिख सकता हूं बड़े आसानी से। और अगर मैं ये लिख सकता हूं तो यहां से मैं कहूंगा 0 नल इज इक्वल टू, मतलब ओ इज इक्वल टू, ए को कॉमन ले लो भाई, माइनस अल्फा माइनस 0.4 इज हाउ मच? 0.4 को 0.4 ही चलो लिखते हैं, प्लस कितना आएगा? 0.4 अल्फा ए, है कि नहीं? अब डिटर्मिनेंट ए तो नॉन जीरो है क्योंकि गिवन है कि इट्स इज आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, तो अब मैं कहूंगा ये टर्म शुड बी जीरो, और अगर ये टर्म जीरो होगा तो सोचो क्या जीरो होने को बोल रहे हैं, माइनस अल्फा माइनस 0.4 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 0.4 अल्फा इज इक्वल टू 0। यहां से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करो, -1 कहां गया? -1 कहाँ है? नहीं राहुल, ये इनवर्स था, तो इनवर्स को मैंने क्या किया, इस आई माइनस 0.4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनवर्स ए इनवर्स इनटू ए विल बी आई ना, सो दैट्स वाई ये आई बन गया, है कि नहीं? उसका उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया वो। अब देखो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस अल्फा, तो कितना हो गया? इसको इधर ले जाओ तो अल्फा की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे? माइनस 0.6 अल्फा इज इक्वल टू 0.4, तो अल्फा इज इक्वल टू आई थिंक -2/3, है कि नहीं? -2/3 मतलब 9 अल्फा, मॉड्यूलस वैल्यू कितना होगा? 9 इंटू अल्फा इज -2/3, 3 3 is 9, मॉड्यूलस ऑफ -6 दैट इज 6 इज द आंसर, करेक्ट था आंसर तुम्हारा। नो हिमांशु, दैट वाज -2/3, 2/3 नहीं था, -2/3 है। देखो अब ये क्वेश्चन जो तुम्हारा है ना, दैट इज क्वेश्चन ऑफ इंटीजर टाइप, ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर लिख दो 6, यहाँ पे तुम्हें 4 नंबर फ्री का मिल गए, है कि नहीं? बस सिंपल सा क्वेश्चन करना था, मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखना था। बोलो समझ में आया?
आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, जल्दी बोलो। राइट, सो गाइस सुनो, तो आपके पास कितना अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है ना, आपका चाहो तो डाउट्स के लिए मैंने बोर्ड्स एग्जाम, अभी मैंने 12th के एग्जाम से स्टार्ट कर दिया, राइट। 12th के एग्जाम्स जैसे ही स्टार्ट कर दिया, 12th के एग्जाम्स के मतलब 12th का सिलेबस स्टार्ट कर दिया, और उसमें क्वेश्चंस देखोगे सब तुम्हें कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होगा, और जेई के लिए अभी जिनका अप्रैल तुमने जनवरी अटेम्प्ट दे लिया है उनको मेंस अटेम्प्ट में भूलोगे नहीं अगर सिर्फ ये 1 घंटे देखते रहोगे, और साथ ही साथ क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं। और अगर आपके पास पर्सनली कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इंस्टासॉल ऐप पर पूछ सकते हो। टेलीग्राम पर बने रहो, हम फॉर टिप्स एंड ट्रिक्स एंड फॉर मोटिवेशन एवरीथिंग, राइट। सो 10th का स्टार्ट करो, इंस्टासॉल्व यूजर 953273 जरूर स्टार्ट करेंगे। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो अगर ये क्लियर है तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, है कि नहीं? अगले क्वेश्चन पे चले, समझ में आ गया ना? ये समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। 1 मिनट दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, करो जल्दी से। एक क्वेश्चन दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट, जल्दी से करो। ए ट्रांसपोज के बारे में पता है ना? हाँ, ये गिवन है तुम्हें, ए एडजॉइंट है। अच्छा, प्रॉपर्टी पता है? ए एडजॉइंट ए का प्रॉपर्टी पता है? ए एडजॉइंट ए, ये प्रॉपर्टी लिख देता हूं मैं यहां पे, ये प्रॉपर्टी यहां लिखता हूं, चलो यही लिखते हैं कि ए इनवर्स जो होता है दैट इज 1 बाई डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट है कि नहीं? अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड तो मुझे मिल जाएगा डिटर्मिनेंट आई इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए, एंड ए से मल्टीप्लाई किया है तो ए एडजॉइंट है, चाहे मैं प्री मल्टीप्लाई करूं या पोस्ट मल्टीप्लाई करूं, तो इधर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए आई इज इक्वल टू ए एडजॉइंट है कि नहीं? ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये प्रॉपर्टी मुझे मिल गई कि ए एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई एन। ठीक है कि नहीं? गुड, ये इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखो। अब अगले चलते हैं। देखो यहां पे गिवन है ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू इज 1, तो डिटर्मिनेंट ए कितना हो गया? डिटर्मिनेंट ए इज 10a प्लस 3b ना, डिटर्मिनेंट ए इज 10a प्लस 3b, तो डिटर्मिनेंट ए आई एन कितना हो गया? डिटर्मिनेंट ए आई एन कितना हो गया? मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का है, तो इट विल बिकम 10a प्लस 3b 0 0 10a प्लस 3b, है कि नहीं? ये बन गया तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट ए आई एन। दिस इज इक्वल टू गिवन है तुम्हें, ये गिवन है ए ट्रांसपोज के, तो ए कितना हो गया? ए इज 5a माइनस बी 3 2, एंड इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, रो कॉलम को इंटरचेंज कर दो, रो कॉलम को इंटरचेंज कर दो, माइनस बी 2, ये आ गया तुम्हारे पास। मिलेगा क्या मुझे? देखो बड़े ध्यान से, 10a प्लस 3b 0 0, ये पिछले ईयर का क्वेश्चन है गाइस, मतलब कि 18-19 किसी ईयर का क्वेश्चन है ये। हेलो राइट, हाय प्रियांशु, हाउ आर यू? क्या होगा बताओ? 25a स्क्वायर प्लस माइनस बी इंटू माइनस बी, तो प्लस बी स्क्वायर 15a माइनस 2b 15a माइनस 2b 9 प्लस 4 13, है कि नहीं? अब देखो यहां से तुम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर लो यहां से, तो तुम्हें मिल जाएगा क्या? 15a माइनस 2b इज इक्वल टू 0 एंड 10a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। यहां से ए बी का वैल्यू निकाल के इस दिस इक्वल टू दिस से सेटिस्फाई कर लो, एंड वॉट एवर वैल्यू यू विल गेट आफ्टर दैट वैल्यू पुट करके निकाल लेना। मैं तुम्हें इसको होमवर्क देता हूं, राइट? सब कुछ तो कर दिया मैंने, बस इक्वेशन को सॉल्व करके पुट कर लो। हाँ, डोप लड़का
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए वही तो कर रहे हैं। तुम अगर ध्यान से देखो, पिछले सारे लेक्चर्स को देखो, तो हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें हर क्वेश्चन में तो कुछ नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, राइट? हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखते हैं इसको कौन करता है। ये गिवन है, इसको देखते हैं कौन करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 satisfies the relation a cube minus 6a square plus 7a minus 8i is equal to 0 and b is equal to a minus 2i, also determinant a is equal to 8, then कौन सा ऑप्शन सही है? और हाँ, दिमाग में ये रखना कि ये मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है? मतलब एक से ज्यादा आंसर सही हो जाते हैं। मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है कि नहीं? तो ये चीज गिवन है तुम्हें। 10 का इंपॉर्टेंट सर 2 स्टेप। राहुल कहाँ किस बात की कर रहे हो? हम तो इस क्वेश्चन पे हैं अभी। उसके स्टेप के लिए वापस मत बुलाया करो इसको, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑलरेडी सेव्ड है कि नहीं? रिकॉर्डिंग ऑलरेडी सेव्ड है, तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो बड़े आराम से। सो गाइस 2 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करो क्वेश्चन को। 2 मिनट आपके लिए है। क्लास 6 का भी करेंगे शुभम कुमार। ओ ओ ओके ओके, अब ऑन हो गया। ओ सॉरी, पानी पीने के चक्कर में माइक भूल गया था, कोई नहीं। तो देखो ये चीज हो गई। हाय गणेश, ऑप्शंस 1 एंड 4। ओके, देखते हैं। तो a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर। अब देखो यार, देखो यहां पे गिवन है b इज इक्वल टू a माइनस 2i। तो इसको अगर दिमाग में लगाते हुए मैं सोचूं a माइनस 2a का क्यूब, देखो अगर मैंने तो मैं ऐसे करूंगा, a क्यूब माइनस 6, ऐसे सोचो a माइनस 2i से कुछ रिलेशन निकालते हैं। a माइनस 2i का क्यूब कितना होगा बताओ? a माइनस 2i का क्यूब कितना होगा? ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी 8i क्यूब, i क्यूब भी i माइनस 3a स्क्वायर भी, मतलब 3a स्क्वायर इंटू 2i है, प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 3 इंटू a इंटू
Okay. So, am I audible now? हाँ, am I audible now? आवाज आ रही है अब तो आनी चाहिए, अब तो आनी चाहिए राहुल, आ रही है आवाज। हाँ आवाज आ रही है, ठीक है। ओके ओके, कुछ लोगों का ए एंड डी ऑप्शन आ रहा है, देखते हैं। तो देखो ये हो गया बी क्यूब इज इक्वल टू 5a। ओके गुड गुड। ओके अजितेश एंड अजितेश लोग तो, तुम लोग तो रेगुलर हो यार। आदित्य, मदीशिया, एवरीवन, बहुत सारे लोग तो रेगुलर बच्चे हैं। बी क्यूब इज इक्वल टू 5a, ये मुझे मिल गया राइट। बी क्यूब इज इक्वल टू 5a मिल गया। अब मुझे चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस 2a इनवर्स। i माइनस 2a इनवर्स, इसका मतलब क्या होगा? i माइनस 2a इनवर्स, i माइनस 2a इनवर्स। ओके सो अब देखो मैं यहां पे ऐसे करूंगा, b तुम्हारा हो गया दिस इज b, तो b क्यूब इज इक्वल टू 5a है कि नहीं? इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ b क्यूब इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 5a, राइट। सो 5 क्यूब के साथ बाहर आएगा इंटू डिटर्मिनेंट a, और डिटर्मिनेंट a गिवन है 8, मतलब कितना? 125 8 जा 125 8 जा 1000, मतलब डिटर्मिनेंट b तुम्हें मिल गया 10, है कि नहीं? डिटर्मिनेंट b मिल गया मुझे 10। अब अगर डिटर्मिनेंट b मुझे 10 मिल गया तो फिर क्या होगा? डिटर्मिनेंट b इज 10, मुझे निकालना है इसकी वैल्यू, तो मैं इसको इरेज करता हूं। डिटर्मिनेंट, ओके सो डिटर्मिनेंट ऑफ b इज a माइनस 2i इज इक्वल टू 10, है कि नहीं? अब देखो यहां से मैं एक काम करूंगा कि मैं a को बाहर निकालता हूं। a को बाहर निकालूंगा तो मैं कहूंगा, ऐसे कह सकते हो कि a यहां से अगर बाहर निकालूंगा, मैं a कॉमन लेता हूं तो यह मिलेगा i माइनस 2a इनवर्स इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस 2a इनवर्स इज इक्वल टू 10, और डिटर्मिनेंट a इज 8, तो डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस 2a इनवर्स इज इक्वल टू 10 बाई 8, मतलब 5/4, ठीक है, 5/4। अब मुझे चाहिए एडजॉइंट ऑफ दिस, तो डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint of I minus 2a inverse will be determinant of I minus 2a inverse का power n minus 1, मतलब 3 minus 1 that is 2। तो डिटर्मिनेंट इसका कितना है? 5/4, 5/4 की पावर 2 मीन्स 25/16। सो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया सबको। 25/16 ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट है। साउंड तो आ रही है, अब साउंड तो आ रही है ना गाइस? डोंट कंफ्यूज मत हो, बताओ साउंड आ रही है या नहीं? यस और नो? शुभम 7 के लिए नहीं है डियर, लीव द क्लास। जब 7 के लिए कुछ होगा तो आ जाना, अभी तो जेई मेंस के लिए हो रहा है, राइट। सभी अगर आपके कोई भैया बहन कोई कुछ भी अगर जेई में प्रिपेयर कर रहा हो तो उसके लिए बोलना। सो देखो नेक्स्ट है b/2 का इनवर्स। देखो ये हो गया, मतलब ये गलत हो गया। अब b/2 का इनवर्स चेक करना है, एडजॉइंट ऑफ b/2 का इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ b/2 का इनवर्स। अब देखो ध्यान से, तो एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का क्या होता है? एडजॉइंट इज डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, है कि नहीं? अब मैं कहूँ अगर एडजॉइंट ऑफ b/2 का इनवर्स निकालना है मुझे, तो मैं a की जगह पे b/2 इनवर्स पुट करूंगा। b/2 इनवर्स का डिटर्मिनेंट इनटू b/2 इनवर्स का इनवर्स। बोलो ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? अब ये बात क्लियर है तो मैं इसके लिए इरेज करके यहां लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा मुझे? ओके
उसके बाद क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ b बाई टू का इनवर्स, तो यहां से देखो मिलेगा क्या, दिस इज 1/2 बाहर आएगा पावर -1 के साथ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b इनवर्स इंटू b बाई टू का इनवर्स विल बी b बाई टू, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2 इंटू डिटर्मिनेंट b इनवर्स यानी 1 बाई डिटर्मिनेंट b इंटू b बाई टू, कैंसिल आउट, डिटर्मिनेंट b कितना है, डिटर्मिनेंट b कितना है, ओ वेट 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 वेट, कुछ तो गड़बड़ कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है ओके, ठीक है, देखो यहाँ भी ये गड़बड़ हो गया, परेशान मत हो, ये समझ में आ रहा है। देखो यहां से मिलेगा मुझे 5/2 का डिटर्मिनेंट, राइट, तो मैं कहूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1/2 का इनवर्स विल बी 2 एंड b इनवर्स, है कि नहीं, इंटू b बाई टू, ये मिलेगा मुझे, बोलो ये मिलेगा। अब अगर ये मिलेगा तो मैं इसको जब बाहर निकालूंगा तो पावर 3 के साथ बाहर आएगा, तो यहाँ विजिबल है तो यही लिखता हूं, तो इट विल बिकम 2 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b इनवर्स मतलब 1 बाई डिटर्मिनेंट b इंटू b बाई टू, तो ये मिल जाएगा 4 अपॉन डिटर्मिनेंट b, डिटर्मिनेंट b कितना था, डिटर्मिनेंट b 10 आया था, डिटर्मिनेंट b 10 आया था इंटू, ठीक है, इंटू b, तो अब यहां से देखो ये जाएगा 2b बाई 5, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ये गलत हो, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 इज करेक्ट, राइट। कब आएगा 7th क्लास का यहीं पता चलेगा शुभम, अभी तो जेई का चल रहा है, होपफुली विल डू क्लास 10th के लिए एंड देन विल टेल यू कि कब और क्लासेस के लिए करेंगे, राइट, 1 बाय 1, परेशान मत लो, अभी के लिए आप इंस्टासॉल ऐप पर पढ़ाई करो, इंस्टासॉल ऐप पे क्वेश्चंस पूछो, डाउट सॉल्व करो, इतने सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, कभी कभी तो आपको आंसर विद इन सेकेंड्स मिल जाते हैं, कभी थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, और वो दिन दूर नहीं कि जब आप सेकेंड्स में आंसर मिल जाएगा आपको, मिली सेकेंड्स में इंस्टा सॉल्व पे, राइट। सो हम कहेंगे सिंपल, सॉल्व नहीं इंस्टा सॉल्व करो। सर मैं डिप्लोमा कर रहा हूं, तो अगर आपके काम का है राहुल तो आप अटेंड करो, राइट, और मैथमेटिक्स तो सबके काम का है, तो यू मे अटेंड, अदरवाइज बेसिकली दिस क्लास इज फॉर जेई मेंस, द पीपल हु आर टारगेटिंग टू जेई मेंस। सो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया, राइट। अगर ये समझ में आ गया तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, क्लियर है। ओके चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मैं फर्स्ट ईयर का हूं, जो कुछ बताएंगे आप मैथ के लिए डिप्लोमा। राहुल अभी तो जेई मेंस के लिए चल रहा है, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि सबको विजिबल है, और नहीं अच्छा थोड़ा सा वो डल हो रहा है, तो ध्यान ये रखो, मैं ये क्वेश्चन आपको सबको दे दे रहा हूं। दिस क्वेश्चन इज होमवर्क टू यू, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ग्रुप पे, राइट। टेलीग्राम के ग्रुप पे इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, राइट, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये मैं होमवर्क दे रहा हूं तुम्हें, इसका सोल्यूशन टेलीग्राम के ग्रुप में आ जाएगा जस्ट क्लास के बाद, या कल सुबह तक का टाइम देता हूं तुम्हें, मैं अपलोड कर दूंगा, राइट। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। मैच द फॉलोइंग ऑप्शंस आर, इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2, यहाँ पे ठीक से शायद विजिबल नहीं है तो मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अनुज मैं वही तो बता रहा हूं ना कि तुम्हें बस 1-2 दिन में बता दूंगा कि 10th का कब क्या करेंगे, राइट। सो जस्ट वेट करो थोड़ा सा, अभी मैं तुम्हें कुछ बता दूं और ना हो पाए वो पॉसिबल, राइट। एवरी टीम इज इन्वॉल्व ना, एवरी टीम इज इन्वॉल्व, सो उसके लिए परेशान मत हो। यहां देखो ये क्वेश्चन हमारे पास है, देखते हैं कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को। लेट P इज इक्वल टू Aij बी अ 3x3 मैट्रिक्स एंड Q इज इक्वल टू Bij, वेयर Bij इज 2 to the power i plus Aij। मतलब P जो गिवन है दैट हैज Aij एलिमेंट 3x3, ठीक है, एंड
Q इज इक्वल टू जो है वो है तुम्हारा Bij 3x3, ठीक है। तो P जो हो गया वो हो गया तुम्हारा क्या, P इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। गाइस थोड़ा सा वो डिले चल रहा है कमेंट का सेक्शन, शायद आपका कमेंट बाद में मेरे पास पहुंच रहा है, अभी शायद कुछ ज़्यादा हो गया टाइम, तो आप डोंट वरी, उसको लिए क्वेश्चन करो, मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ, राइट। एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल आफ्टर द क्लास, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रामू, मैंने होमवर्क लिए दिया था ना क्वेश्चन तुम्हें, क्वेश्चन तो दिया था, उसी क्वेश्चन को करना है, राइट। अब देखो सॉल्यूशन इंस्टासॉल्व ऐप पे मिल जाएगा, ओ सॉरी इंस्टासॉल्व के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। अब देखो ये तुम्हें हो गया। अब मैं कहूं अगर कि दिस इज गिवन टू यू, P इज इक्वल टू दिस वन, एंड Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इज, मुझे बताओ B11 क्या होगा, गिवन है Bij इज 2 to the power I plus j Aij, तो यहां से मैं कहूंगा B11 कितना होगा, B11 इज 2 to the power 2 into A11, B12 कितना होगा 2 to the power 3 into A12, है कि नहीं, इस तरह से होगा। अगर इस तरह से होगा तो मैं इसको सिंपल से कहूंगा कि Q इज इक्वल टू 2 to the power 2 into A11, 2 to the power 1 plus 2 मतलब कि 3 B1 A12 एंड 2 क्यूब, इसको यहां लिखता हूं मैं, Q को मैं यहां लिख रहा हूं, यहां विजिबल नहीं है। Q इज इक्वल टू B11 मतलब A1 2 to the power 1 plus 1 A11, तो 2 to the power 2 into A11, 2 to the power 3 into A12, 2 to the power 4 into A13, 2 to the power A21, 2 to the power 3 A21, राइट, A22 तो 2 to the power 4 आ जाएगा, A32 आएगा तो A2 to the power 3 plus 2 2 to the power 5 आ जाएगा, 2 to the power यहाँ पे आएगा A31 तो 2 to the power 3 plus 1 4 आ जाएगा, A32 आएगा तो 2 to the power 3 plus 2 5 आ जाएगा, A to the power A33 तो 2 to the power 3 plus 3 6 आ जाएगा। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। यस सैफू, क्या प्रॉब्लम है? एंड गिवन है तुम्हें कि डिटर्मिनेंट ऑफ P इज 2, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है दैट इज गिवन 2, डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू 2। अब देखो यहां से मैं अगर 2 स्क्वायर पहले रो से मैं 2 स्क्वायर निकालूं, ठीक है, यहां से मैं 2 स्क्वायर कॉमन निकालता हूं, दूसरे रो से मैं 2 क्यूब कॉमन निकालता हूं, एंड थर्ड रो से मैं 2 to the power 4 कॉमन निकालता हूं, तो मेरे पास बच जाता है, ओके रामू सब समझाएंगे, जस्ट देखो मैं फिर से समझाऊंगा। अगर मेरे पास क्या होगा 2 to the power 2, तो मेरे पास अगर मैं यहाँ कॉमन लिया तो मेरे पास बचेगा A11, कॉमन लिया है तो ये अच्छा यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ 2 स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे सेकेंड रो में A to the power 2 to the power 3 कॉमन लिया है तो A21 बचेगा, और यहाँ पे 2 to the power 3 निकाला तो 2 into A22 बचेगा, 2 स्क्वायर इंटू A23 बचेगा। A to the power 2 to the power 4 नेक्स्ट रो से निकाला है, थर्ड रो से, तो यहाँ बचेगा A31, यहाँ बचेगा 2 इंटू A32 एंड यहाँ बचेगा 2 स्क्वायर इंटू A33। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है ये चीज। ये बात सबको क्लियर है, ठीक है। समझाएंगे डोंट वरी। अब देखो यहां से मैं कहूंगा ये 2 फिर से कॉमन मिल गया तुम्हें, ये 2 फिर से कॉमन मिल गया, एंड ये 2 स्क्वायर फिर से कॉमन मिल गया, राइट। तो 2 की पावर कितना, 2 3 5 4 9, 2 to the power 9, एंड सेकेंड कॉलम से 2 कॉमन निकाल लिया, थर्ड कॉलम से 2 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया क्या A11, A12, A13, A21, A22,
A23, A31, A32, A33, ये बच गया है कि नहीं? दिस इज क्या Q मिल गया। अब यहां से सोचो कितना हो गया ये, इसका डिटर्मिनेंट ही तो हम निकाल रहे थे, इसका डिटर्मिनेंट ही तो निकाल रहे थे ना, डिटर्मिनेंट Q निकाल रहे थे हम। तो अब सोचो यहां से कितना हो गया, 2 की पावर 2 to the power 12 into determinant P, and determinant P is how much? Given 2, so answer आ गया 2 to the power 13. That is option number 4 is correct. Option 4 is correct. Yes. रेड कलर में, ओके ओके ओके। रामू देखो, Q था B11, गाइस सुनो, सब लोग सुनो, रामू ही नहीं, जिसको भी कंफ्यूजन है। Q था B11 के बारे में गिवन है कि Bij जो है वो 2 to the power I plus j Aij है। तो B11 निकालने के लिए I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 की पावर 1 प्लस 1 2 स्क्वायर A11 आएगा, वो वैल्यू यहां पुट कर दिया। A12 निकालने के लिए लिखेंगे 2 की पावर I की वैल्यू 1 पुट करेंगे, J की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 1 प्लस 2 2 क्यूब इंटू A12 मिलेगा। सिमिलरली B13 निकालने के लिए, B13 का मतलब I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3, तो 2 की पावर 1 प्लस 3 A13 मतलब 2 की पावर 4 A13। इसी तरह से सबको लिख लिया, पहले रो में 2 स्क्वायर कॉमन, दूसरे रो में 2 क्यूब कॉमन, तीसरे रो में 2 पावर 4 कॉमन, उसके बाद पहले कॉलम में 2 कॉमन और दूसरे कॉलम में 2 स्क्वायर कॉमन। इन सब को लेने के बाद 2 स्क्वायर कैसे बचेगा? क्योंकि जब तुम 2 स्क्वायर पहले निकालोगे तो यहां से 2 पावर 4 में से 2 स्क्वायर चला गया तो 2 स्क्वायर बचेगा ना। क्लियर है? रामू शुक्रिया, तुम्हारे नाम में खुद शुक्रिया है। सो आई होप कि ये क्लियर है सबको। बोलो, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? टेंथ का लेसन अभी नहीं करेंगे ना, तो 2 to the power 13 इज द आंसर। आगे चलता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास। राना को क्लियर नहीं है, राना रिवाइज थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देखो, बहुत आसान से स्टेप्स थे, बहुत बार रिपीट करेंगे तो ये भी मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। सी, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये भी। देखते हैं किसका सही है। तो इन मैट्रिक्सेस को मैं मान लेता हूं ए बी सी डी, ये मैट्रिसेस ए बी सी डी हैं। मुझे निकालना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और गिवन है एक्स एंड वाई आर स्क्यू सिमेट्रिक, एंड एक्स वाई जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब कि एक्स ट्रांसपोज जो है दैट इज इक्वल टू एक्स, y भी सिमेट्रिक है, y ट्रांसपोज इज y, एंड z स्क्यू सिमेट्रिक है, z ट्रांसपोज इज माइनस z। मेरे ख्याल से ये बात से क्लियर है सबको। बोलो, ये क्लियर है? उल्टा लिख दिया आपने? अच्छा, हाँ उल्टा लिख दिया। ओके, ये गिवन है कि x एंड y आर स्क्यू सिमेट्रिक, x एंड y आर स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ये माइनस x, ये माइनस y और ये प्लस j। ठीक है, वेरी गुड हिमांशु, हाँ वेरी गुड। सो ये गिवन है। मैं कहता हूँ लेट सपोज ये मैट्रिक्स ए बी सी डी मान लेता हूँ अपने काम के लिए, मैट्रिक्स ए बी सी डी। मैट्रिक्स ए बी सी डी अगर मानता हूं तो मुझे बताना है ए ट्रांसपोज कितना होगा। ए ट्रांसपोज जो होगा वो होगा वाई क्यूब जेड टू द पावर 4 माइनस जेड टू द पावर 4 वाई क्यूब का ट्रांसपोज। ठीक है, ध्यान रखना ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज।
ठीक है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखते हुए मैं कहूंगा y क्यूब z टू द पावर 4 का ट्रांसपोज माइनस z टू द पावर 4 y क्यूब का ट्रांसपोज। फिर अगली जो प्रॉपर्टी मुझे यूज करनी है, मैं कहूंगा ट्रांसपोज ऑफ ए बी, दैट इज ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, और दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन का ट्रांसपोज, नो ए टू द पावर एन का ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट नहीं, ए टू द पावर एन का ट्रांसपोज जो होगा वो ये होगा ए ट्रांसपोज टू द पावर एन। ये दिमाग में रखना आपने। अपन का वीडियो नहीं चल रहा है सो अपन सर्किट को बुलाएगा, राइट एंड सर्किट फिर वीडियो चला देगा चलो, सो इंस्टासॉल यूजर कर लो। सो क्या हो जाएगा देखो, अच्छा उसके बाद मैं लूंगा तो ये हो जाएगा z टू द पावर 4 ट्रांसपोज इंटू वाई क्यूब का ट्रांसपोज माइनस वाई क्यूब का ट्रांसपोज, वाई क्यूब z4, y क्यूब z4 z4 y3 y क्यूब z4 z4 y3 y क्यूब z4 y क्यूब z4। हाँ तो ठीक तो है, ओके y क्यूब z4 तो मिल जाएगा तुम्हें z4 का ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो जब मुझे ये मिल गया तो z पावर 4 का ट्रांसपोज विल बी, गाइस थोड़ा सा जानबूझ के इसको बहुत एक्सप्लेन करके लिख रहा हूं, अगले चार को तुम अगले सबको तुम चेक करोगे, y ट्रांसपोज की क्यूब, राइट, माइनस y ट्रांसपोज का क्यूब। सारी प्रॉपर्टी यूज हो गई भाई इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन से सारा प्रॉपर्टी रिवाइज कर लेते हैं। ये हो गया। अब देखो z ट्रांसपोज जो है वो तुम्हारा z है, तो मतलब ये z की पावर 4 आ गया। y ट्रांसपोज माइनस y है तो ये आ जाएगा माइनस y क्यूब, है कि नहीं, माइनस y ट्रांसपोज माइनस है तो प्लस ये आ जाएगा y क्यूब, एंड z ट्रांसपोज जो है वो प्लस z है, प्लस z की पावर 4 विल बी z पावर 4। तो अगर ध्यान से देखो तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया इसका ट्रांसपोज a इज व्हाट, ये है क्या, माइनस z4y3, दिस इज y क्यूब z टू द पावर 4 माइनस z4, ये मुझे मिल गया सेम एज a, ये मुझे सेम मिल गया a, राइट। अब अगर देखो तुम्हें a ट्रांसपोज a मिल गया, मतलब a क्या भाई, a तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकला, ये तो इसने तो धोखा दे दिया। a जो हमारा आया वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। अब जब a और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया तो भाई मुझे निकालना है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर 1 तो इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 तो इनकरेक्ट है। सिमिलरली मैं तुम्हें ये टास्क देता हूं कि मैट्रिक्स ए बी सी डी के लिए चेक करो। सर यू आर वेरी इंटेलिजेंट, अच्छा थैंक यू डियर। सो बी सी डी ये गिवन है, मैं कहूंगा बी सी डी के लिए सेम प्रोसेस करना, मैंने इसीलिए इसको बहुत एक्सप्लेन किया है। बी सी डी के लिए सेम प्रोसेस करो और पता करो कि कौन कौन सा इसकी सिमेट्रिक है। आंसर तुम्हें मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, लेकिन ये एडवांस का क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन एडवांस में डिजर्व नहीं करता, बट आया था फ्री में नंबर बांटने के लिए, राइट। उनका मन थोड़ा सा दरिया दिल का उस टाइम पे हो गया था और उन्होंने फ्री में नंबर बांट दिए, तो इसलिए क्वेश्चन एडवांस का आया था। कतई बिलीव नहीं करूंगा मैं, बट ऑप्शन शायद इसका 3-4 है, मेरे बात पे यकीन मत करना, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, शायद 3-4 आंसर है, चेक कर लेना, दिस विल बी द आंसर, ओके। सो आई होप कि ये क्लियर है सबको, क्लियर है। हाय नवनीत, मैं वेट कर लेता हूं थोड़ा सा क्योंकि डिले चल रहा है, तो आप लोग रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो। गाइस प्लीज रिप्लाई करो। बहुत से, तो ये क्लियर है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। सो ये आ गया हमारे पास, ओके। आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो इसको कर लेना, इसको होमवर्क दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये बेसिक से जो कॉन्सेप्ट बताया तो मैं इसी का यूज करके सेम तरीके से करना है। तो होमवर्क है सिमिलरली जैसे इसके लिए किया वैसे ही बी सी डी के लिए चेक करो एंड आंसर यू विल गेट वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं।
व्हाट इज दिस राना? सो दिस इज समथिंग राइट। आई होप कि मेरे ख्याल से ये क्लियर है सबको, और ये क्लियर है तो मैंने जितने क्वेश्चन लेके आए थे वो कर लिए, और आपके लिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे अपन लोग कल क्वेश्चन करेंगे राइट। और उस कॉन्सेप्ट के बेस पे जब कल क्वेश्चन करेंगे तो विल बी यूजिंग सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन राइट, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो उसके लिए देखो क्या होगा, आई होप कि ये क्लियर है। आगे चलते हैं। देखो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको ध्यान में रखो। ठीक है, मैंने कहा कि अगर मेरे कल का जो टॉपिक है मेरा दैट इज, या कह सकते हो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन राइट। तो जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन कैन बी ऑफ 3 टाइप। ठीक है सर, आप थकते नहीं सर पढ़ाते? नहीं थकता मैं सर। मैंने बहुत बार नोटिस किया है जिन क्वेश्चन में ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ती है, लास्ट के ऑप्शन में आंसर आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है हिमांशु। बट ऐसा ट्राई मत करना एग्ज़ाम में, ऐसा एग्ज़ाम में ट्राई मत करना, क्योंकि क्या पता उसी दिन वो पहले ऑप्शन वाला सही हो जाए राइट। सो एग्जामिनर बड़ा दिमाग लगाता है, ऐसा हो सकता है बट इसको रूल मत बताना राइट। इसलिए हमेशा हम इन ऑब्वियसली एग्री कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इतना डीपली एनालिसिस किया नहीं इसके बारे में, बट क्योंकि इसके बारे में कभी रिलाई मत करना कि लास्ट में आंसर सही होगा। कोई नहीं, आगे चलते हैं। देखो मैं कुछ बेसिक्स कर लेता हूँ। हाँ ये कर सकते हो हिमांशु कि लास्ट वाला चेक कर लो पहले, क्योंकि चेक तो सबको करना है। देखो अब मैं कहूँगा सपोज मेरे पास एक सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का a1x प्लस b1y। गाइस बहुत अच्छे से समझाऊंगा प्लेन की हेल्प से, क्योंकि पहले बार जब पढ़ाते हैं ना वहाँ पे, पढ़ाते हैं ना तो वहाँ पे हमें समझ में नहीं आता, वहाँ पे ये नहीं समझ में आता कि कैसे एक यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है, लीनियर सोल्यूशन का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें। तो ध्यान रखना, प्लेन आप सब पढ़ चुके हो जो 12th में हो, तो उसकी हेल्प से जब हम रिवाइज करेंगे तो प्लेन का हेल्प भी ले सकते हैं राइट। उसके ध्यान रखना, वेक्टर्स एंड प्लेन ये सारी चीज़ें। d2 ये तुम्हारे पास हो गया a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन, दैट इज दी, सोचो ये हमारे पास है ओके। सो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब इसके पास 3 चीजें हो सकती हैं राइट, 3 चीजें हो सकती हैं सॉल्यूशन के केस में। एक तो हो सकता है कि सॉल्यूशन है राइट, सॉल्यूशन है, और दूसरा हो सकता है कि नो सॉल्यूशन राइट, नो सॉल्यूशन। अब ध्यान रखो जब सॉल्यूशन है तो जो सॉल्यूशन होता है वो 2 तरीके का हो सकता है। सॉल्यूशन 2 तरीके का हो सकता है, एक तो होता है यूनिक सॉल्यूशन, अकेला सॉल्यूशन होगा भाई, एक होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसे होगा, क्या होगा, कल सबकी बैंड बजाएंगे। कैन यू से वंस अगेन फ्रॉम स्टार्टिंग? क्या मुस्ताक? नो सॉल्यूशन आता है। नो सॉल्यूशन में सिंपल सी बात है, नो सॉल्यूशन तो नो सॉल्यूशन, कोई बात ही नहीं, जीरो सॉल्यूशन होगा यहाँ पे, है कि नहीं? जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन में कंफ्यूज ना हो जाओ कि जीरो वाला सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन सिंपल राइट। जो यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन है भाई, ये कम से कम सॉल्यूशन दे तो रहे हैं, दुनिया में कुछ ना कुछ XYZ की वैल्यू मिल रही है जो इन्हें सेटिस्फाई करेगी, कम से कम ये तुम्हें सॉल्यूशन दे तो रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे इनको कंसिस्टेंट सिस्टम राइट, इनको बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। मैं ऐसे लिखूंगा, इन 2 केसेस में लिखता हूं सिस्टम, सिस्टम क्या, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, सेड टू बी कंसिस्टेंट। अगर नो सॉल्यूशन है तो भाई यहां पे सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, 1 या 2 इनफाइनाइट कुछ नहीं मिल रहा है, तो सॉल्यूशन सिस्टम इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, थैंक यू ओके। ये सिस्टम इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। अब ध्यान देने वाली ये बात है, ये तुम्हारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था। अगर मेरे पास होमोजीनियस आ जाए, ध्यान रखना, मैं अगले पेज पे चलता हूं, 2 मिनट का डिस्कशन बस है। ये देखो,
अगर मेरे पास होमोजीनियस सिस्टम आ जाए, होमोजीनियस मतलब जिसमें आरएचएस में 0 होगा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इन बातों को दिमाग में रखना, कल हम क्वेश्चंस करेंगे। होमोजीनियस सिस्टम, राइट, होमोजीनियस सिस्टम में क्या होगा, तुम्हारे पास आरएचएस में 0 आएगा। आरएचएस में 0 आने का सिंपल सा मतलब है, देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, a3x प्लस b3y प्लस c3z जो है वो 0 हो गया, है कि नहीं। अब अगर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0, तो ऑलवेज सेटिस्फाई करेंगे, ऑलवेज सेटिस्फाई करेंगे, ऑलवेज सेटिस्फाई करेंगे इसको। इसका मतलब क्या हो गया, इस सिस्टम का इनकंसिस्टेंट रहने का सपना अधूरा रह गया। इस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम का इनकंसिस्टेंट रहने का सपना अधूरा रह गया। इसका मतलब क्या है, ये कभी चाह कर भी इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता, इसका मन करेगा फिर भी ये इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता। इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट सिस्टम, राइट। और कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब है कि ये तुम्हें हमेशा यूनिक सोल्यूशन, अगर सिर्फ एक सोल्यूशन है तो ये तो हमेशा है, यूनिक सोल्यूशन का मतलब यही सोल्यूशन मिलेगा 0 0 0 वाला, और इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं इसको, राइट, ट्रिवियल सोल्यूशन। मतलब अगर पहली बात तो होमोजीनियस सिस्टम कभी इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता और कभी इनकंसिस्टेंट नहीं होगा। यूनिक सोल्यूशन अगर है तो 0 0 0 तो हमेशा सोल्यूशन होगा, और अगर 0 0 0 हमेशा सोल्यूशन है तो तुम्हारे पास जो यूनिक सोल्यूशन होगा दैट विल बी 0 0 0 वाला केस, एंड इसी को हम बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन, राइट। और ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल क्या हो गया, सोल्यूशन तो हमेशा है, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है तो इसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, राइट। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं इनफाइनाइट वाले को। ये दिमाग में रखना, इसके दिमाग में रखने के साथ साथ हम कल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। गाइज आई होप कि यू गाइज एंजॉयड दिस सेशन, थैंक यू। और वही मैं बोलूँगा लास्ट, जैसे हमेशा बोलता हूँ कि मैं भूल गया एक्चुअली क्या बोलने जा रहा था तुम्हारे लिए, कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, राइट। आप बस मेहनत करते रहो, जेई में बहुत अच्छा करोगे। सर ऊपर का दिखाई नहीं दे रहा है, कैमरा ठीक करो। आओ, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है होमोजीनियस सिस्टम, हम सही कर लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है होमोजीनियस सिस्टम। चलो, हेलो शाहिद, सो बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस, गुड बाय, थैंक यू।